Hello, guys, welcome back. So, here I am with the explanation of the poem On His Blindness by John Milton. In our last video, हमने पढ़ा था जॉन मिल्टन के बारे में, about his life, about his education, about his writing style, about his political career. In this poem, we will read about how he got blind. Not how, but what was his stage, in which state he was when he went blind, and how he overcame it. On his blindness, when I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to the height, lost with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor, light denied. I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke. They serve him best, his state is kingly. Thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. So as we have learned, हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था about his patriarchal sonnet. So हम देखेंगे इसमें there are 8 lines in the first stanza and there are 6 lines in the second stanza. Also यहाँ पे 2 tercet है. It means जो ये 6 lines वाला पैराग्राफ है इसमें 3 lines हैं, 2 groups हैं. Clear? Now let's move to the explanation part. First line, when I consider how my light is spent. Spent here is exhausted. जब मैं सोचता हूँ कि मेरी eyesight कैसे गई. Ere half my days in this dark world and wide. Before I could even complete half of my life. So बोलते हैं कि यार जब मैं सोचता हूँ कि मेरी eyesight कैसे चली गई, कि मेरी जिंदगी की मेरी आधी जिंदगी भी नहीं कटी थी, इससे पहले ही मेरी eyesight चली गई. So यहाँ पे ere half my days, यहाँ पे half my days क्यों लिखा हुआ है? इसका एक biblical allusion है, biblical collection है. Milton was 42 in 1652 में Milton 42 years old थे और जब वो totally blind हो गए थे. ठीक है? The traditional span of man's life is the biblical 60 years and 10. जो एक average life span माना जाता है किसी बंदे की लाइफ का, वो 70 years का माना जाता है. So मिल्टन ने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उनके फादर 84 years old थे एंड फिर भी उनकी बहुत अच्छी आईसाइट थी. राइट? सो अगर हमारे आसपास ऐसा होता है तो हम कंपेयर करते हैं खुद को. सो हियर ही इज कंपेयरिंग कि मेरी तो आधी जिंदगी भी नहीं हुई, इससे पहले मेरी लाइट आईसाइट चली गई. ही हैज नॉट येट इवन गिवन बेस्ट टू हिज वर्ल्ड नाउ एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेड टू हाइड. नाउ हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ही अनाउंस्ड कि वो वर्ल्ड को कुछ देना चाहते हैं, राइट, इन राइटिंग. बट अभी तक तो उन्होंने वो भी नहीं दिया एंड उससे पहले उनकी आईसाइट चली गई. कैसे चली गई? बिकॉज ही यूज्ड टू रीड वेरी मच. अब यहाँ पे एक आयरनिकल चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे इसलिए उनकी आईसाइट चली गई. अब वो पढ़ भी नहीं पाएंगे और पढ़ पाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें. So it's a very miserable part of his life. But with optimism, he changed it, and that we are going to read now. And that one talent which is death to hide. It could mean that even if he is in the terrible condition, then also death can take away his talent. Second interpretation, hiding this one talent of poetry is equivalent to death. अब इसका मतलब है कि सिर्फ डेथ ही अब उनका ये जो टैलेंट है उनसे छीन सकती है. इससे पहले चाहे उनकी आईसाइट चली जाए, चाहे उनका एक्सीडेंट, व्हाटएवर बी द सर्कमस्टांसेस, उनका टैलेंट उनके पास रहेगा. फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. सेकंड इंटरप्रिटेशन कैन बी कि अगर वो अपने इस टैलेंट को हाइड कर लेंगे, वो सिचुएशन को देखकर सोचेंगे कि मुझे नहीं लिखना, अब मुझे अपने टैलेंट को यूज़ नहीं करना, मैं तो यूजलेस हो गया हूँ,
ऐसे सोचेंगे और हाइड करेंगे टैलेंट को, तो इट विल बी इक्वल टू डेथ। होता है ना, जिंदा होके भी मरे हुए फील होना। नाउ टैलेंट का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। टैलेंट का एक बिब्लिकल यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब बाइबल से कुछ कनेक्शन है, एंड दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। एक किंग होता है, उसके 3 सर्वेंट्स होते हैं। जो पहला सर्वेंट होता है, किंग उसके पास छोड़ जाता है 5 टैलेंट्स। देन सेकंड वाले सर्वेंट के पास वो छोड़ता है 2 टैलेंट्स। थर्ड सर्वेंट के पास वो छोड़ता है सिर्फ 1 टैलेंट। पहले के टाइम में टैलेंट को सम ऑफ मनी से भी हम सिनोनिमस मान सकते हैं। जब वो थोड़े दिनों बाद कहीं दोबारा आता है, तो जो फर्स्ट वाला सर्वेंट होता है वो अपने टैलेंट्स को इंक्रीज कर लेता है और ज़्यादा ट्रेड करके। सेकंड वाला भी ऐसे ही करता है। थर्ड वाला क्या करता है, वो उस टैलेंट को छुपा देता है। उसे लगता है उसे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई एंड ही शुड हाइड इट। हम भी ऐसा कभी कभार करते हैं कि हम कोई नई बुक लाए हैं, हम उसे पढ़ते नहीं हैं, या हम कोई नई नोटबुक लाए हैं, हम उसे सजा कर रख देते हैं, वी डोंट यूज इट, फिर वो पड़ी रहती है और फिर वो हमारे कभी काम ही नहीं आती, राइट? या फिर कभी कभी मम्मी बोलती है कि दिमाग का यूज कर लिया अगर, जंग लग जाएगा वरना। हमें चीज़ों को यूज करना चाहिए, जो उनका मेन पर्पस है वो सॉल्व करना चाहिए। बट नहीं किया सर्वेंट ने, दो ने तो अपना एक्सपैंड कर दिया, थर्ड वाले ने क्या किया, उसने उसको हाइड कर दिया। अब किंग दोबारा आया, उसने फर्स्ट वाले को बहुत शाबाशी दी, सेकंड वाले को भी दी, पर थर्ड वाले को नहीं दी। इवन जो उसके पास टैलेंट था उससे वो भी छीन लिया। ये तो उसे संभाला तो गया नहीं, एक्सपेंड तो कुछ किया नहीं, बस रख के बैठ गया। ऐसे ही यहाँ पर मिल्टन ने बहुत ही अच्छा यूज किया गया इस वर्ड का। टैलेंट, आज के टाइम में हम टैलेंट देखें तो हमारी स्किल्स, स्पेशल एप्टीट्यूड और फैकल्टी के बारे में हम इसे सिनोनिमस मान सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं। इफ़ यू यूज टैलेंट एज बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन या फिर दूसरी वाली स्किल्स वाली। मिल्टन जो होते हैं, अब लेट्स रीड आगे कि क्या सोचते हैं। हेयर हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि मिल्टन जो है वो किंग को भगवान के उस पे रखते हैं, ठीक है, पैरेलल रखते हैं स्टोरी के बेसिस पे, और खुद को उन थर्ड सर्वेंट के पैरेलल रख के देखते हैं। एंड देन ही रियलाइज ही इज क्वाइट अफ्रेड कि भाई किंग ने जैसे डांटा थर्ड सर्वेंट को, ऐसे भगवान मुझे डांटेंगे अगर मैं अपनी एक्सक्यूज लेके बैठ जाऊं ब्लाइंडनेस का, और मैं अपने टैलेंट्स को यूज ना करूं, हाइड करके बैठ जाऊं, ठीक है। ही वुड बी चैडेड बाय द गॉड फॉर नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज और यूजिंग हिज टैलेंट फॉर पोइट्री. So he insisted on becoming the first servant who was best of talent, and he expanded it. So did the Milton in his actual life by composing one of the greatest epic poems, Paradise Lost. And ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, इस पोएम में जो चीज़ें उन्होंने कही वो एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में ब्लाइंडनेस तो थी, स्ट्रगल था, बट स्टिल ही रोट, ही कंपोज्ड an epic poem that is Paradise Lost. इन्होंने हाइड नहीं किया अपना टैलेंट, ही gave it to the world. Lost with me useless, though my soul more bent. अब वो बोलते हैं, लास्ट लाइन क्या थी, and that one talent which is death to hide. अगर उस एक टैलेंट को छुपाया तो वो डेथ के इक्वलेंट होगा। और lost with me useless, यूजलेस ही मेरे साथ होगा, बट मेरा जो सोल है वो अभी भी बेंट है गॉड की सर्विस के लिए। बैक टू द स्टैंडर्ड, ही फेल्ट दैट हैविंग सच टैलेंट वुड बी यूजलेस नाउ। ये उनका फर्स्ट थॉट था कि ऐसा टैलेंट होगा तो ये हो सकता है यूजलेस है मेरे लिए, मेरी तो आईसाइट ही चलेगी। ये फर्स्ट थॉट था। नाउ वी विल सी देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन इन थॉट प्रोसेस नाउ, but in second view he says that his soul is still bent and inclined towards the service of God in any way, to serve therewith my maker and present. ना वो बोलते हैं कि उन्हें अपनी मेकर को, गॉड को, उन्हें सर्व करना है। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आई एम जस्ट रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। टू प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट दैट मीन्स टू शो गॉड माई फुल पोटेंशियल। अब गॉड ने हमें कोई चीज़ दी है, उन्होंने कुछ सोच कर ही दी होगी कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं,
सो मिल्टन वॉन्ट्स टू स्टैंड ऑन दैट फर्म बिलीफ कि गॉड ने मुझे कोई टैलेंट दिया है, उन्होंने कुछ सोच कर दिया हुआ, एंड आई हैव टू प्रूव हिम दैट आई कैन यूज इट एंड ही इज राइट इन गिविंग मी दैट नाउ। और फिर वो सोचते हैं कि गॉड मुझे स्कोल्ड भी करेंगे। नाउ Dot got exacte labor light the night. I fondly ask but patience to prevent. Dot का यहाँ पे मतलब है do. Exact का मतलब है insist on. Fondly का मतलब है foolishly, naively. अब वो बहुत ही foolishly, naively पूछते हैं मिल्टन गॉड से, या खुद से ही पूछते हैं वो, क्या मेरे पास लाइट नहीं है बट फिर भी क्या मुझे सबकी इक्वली काम करना पड़ेगा? क्या मेरे को कोई रिलीफ नहीं दिया गया या जाएगा? Also, he asked, how could he do things exactly in the same way when light is denied to him? अगर वो लोगों के इक्वल है ही नहीं तो वो इक्वली काम कैसे कर पाएंगे? ये उनके थॉट में चल रही होती हैं सारी चीजें, बट एक आवाज आती है अंदर से, with patience comes an answer, an echo, and he prevented that thought, and now he has another thought. थॉट्स तो माइंड में चलती रहती हैं, तो हमने फर्स्ट थॉट के बारे में पढ़ा कि कैसे वो अपने स्ट्रगल्स को क्या कर रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं उनके ऊपर। बट नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट स्टेंजा, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब फर्स्ट स्टेंजा में थे क्वेश्चंस, एक कंफ्यूजन, सेकंड स्टेंजा में कंफ्यूजन दूर होगी एंड हमें आंसर्स मिलेंगे। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डॉट नॉट नीड either man's work or his own gifts. Who best bear his milieu, they serve him best. नाउ फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्वेश्चन पूछे, सेकंड में आंसर मिल गए, एनलाइटमेंट हो गई। अब कैसे? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। यहाँ पे मर्मर का मतलब है कंप्लेन, ग्रम्बलिंग। जो इनोसेंटली वो पूछ रहे थे कि क्या गॉड मुझे भी इक्वली काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें जो पूछ रहे थे वो, अब उन्हें एक जवाब मिलता है। ठीक है, उन्हें ये मिलता है कि गॉड डजंट नीड मैन्स वर्क। भगवान को मैन के काम की जरूरत नहीं है। यू डू इट फॉर गॉड, हम भगवान के नाम पे करते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि भगवान का काम रुक रहा है इन चीज़ों के बिना। हिज लाइफ इज गोइंग ऑन। वो हमारे लिए वेट नहीं कर रहे हैं कि हम आएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, राइट? ही सीज पीपल, वो तो देखते हैं कि लोग उन्हें सर्व कैसे कर रहे हैं, जो वो चैलेंजेस लोगों पे पुट करते हैं, वो उनमें कैसे खुद को ढाल रहे हैं, कैसे वो उन चीज़ों पे खड़े उतर रहे हैं। Who stands firm and face the situation courageously and don't step back or give up, वो उन्हें देखते हैं। Also there is a saying, God gives his strongest warriors the toughest battles. तो God तो ये छोटी चीजें देखते हैं। His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, and they also serve only stand and wait. अब इसमें आ गए हैं सर्विंग के मेथड्स कि हम गॉड को सर्व कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं और कौन करता है सर्व। और मिल्टन जो है, जिनकी आइज चली गई हैं, क्या वो भी इस लेवल में है, इस स्टेट में है कि वो गॉड को सर्व कर पाए? सो गॉड जो है उनकी स्टेट किंगली है, ही इज सुप्रीम एंड ऑफ हाईएस्ट ऑनर। और थाउजेंड्स, यहाँ पे बात करी हुई है थाउजेंड्स, दैट्स अ रेफरेंस टू एंजल्स, गॉड्स मैसेंजर्स। वो थाउजेंड्स लोग गॉड की सर्विस पे हैं, स्विफ्टली ओशन से इधर उधर जा रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं इधर उधर, विदाउट रेस्ट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वर्किंग एंड सर्विंग। दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्फ टू द गॉड। बट देन मिल्टन एडेड, बट सम सर्व विद पेशेंस एंड बिलीव। यहाँ पे आ जाता है हमारा पैराडॉक्स, क्योंकि हम मानते हैं सर्व कर रहे हैं हम किसी को, तो हम उसे एक्शंस में मानते हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है तभी हम उन्हें सर्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे मिल्टन बोलते हैं कि विदाउट एक्शंस भी हम सर्व कर सकते हैं। एंड हाउ कैन वी सर्व? बाय हैविंग पेशेंस, बाय स्टिलनेस। दिस ओपन्स an another aspect or way of serving God. Now, some more things about poem which is very, very, very important. He wrote this poem after blindness. It's a sensitive account full of pain and loss of eyesight, grief. हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि 1652 में he got blind, but 1660s तक उनके माइंड में एक चेंज आया, लाइक उनकी थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज आया,
and he had an optimistic approach that blindness is a gift of insight. उन्होंने इस चीज को पूरी तरह accept कर लिया था. With patience, he learned this. It is quite ironical. He can't see. वो देख नहीं सकते, but at this point of time he sees and perceives spiritual truth more clearly. जब वो blind हुए तभी उन्हें दिखा spiritual perspective बहुत ज़्यादा clearly. Poem is still relevant today. We can see that. Now there are some important themes which you need to mention in exam, and you can say keywords जो अगर आप exam में mention करोगे, you are going to get very good score. So loss, suffering and struggle. Loss of eyes, suffering and struggle हमने पढ़ा. God पे indomitable faith थी मिल्टन की. Patience and acceptance of a situation. Service to God, faithful and dutiful. Spirit to not give up and hope amid so much despair. Theory of actions, karma. फिर भी हमने इसमें पढ़ा bearing trials and humility with humble endurance. अगर आप भगवान को बहुत डिवोटेड हो और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, you would be like angry कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. He might have gone through this stage, but हमने जो पोएम में देखा, he was very calm. He had some confusion, but he soon overcome that. Now, human limitations versus divine omnipotence. कि क्या ह्यूमंस की लिमिटेशंस होती है और क्या भगवान के हाथ में होता है. Strong willpower, inner strength, spiritual growth and spiritual maturity, divine justice and mercy, human anxiety about purpose, conflict between ambition and submission. Redefinition of work and productivity, themes of isolation and loneliness, grief, silent cry, mortality, age, lost eyesight, someday death would come. We know that. Divine self-sufficiency. Now, some important things about the poem's writing style. It's written in patriarchal sonnet, Italian form. ये हमने starting में पढ़ा. Volta, turn in thought. In first stanza, we see there is a question, there is a lamentation. But in second, there is some consolation, and patience is the answer. Then symbolism, light is equivalent to vision, inspiration, life's opportunities. Talent, Milton's poetic gift. Dark world and white, the human condition of blindness, right? Physical and spiritual. Didacticism, moral lesson about faith, patience, true service. Theme of theodicy, literature that seeks to justify the ways of God to men. ये चीज़ें symbolism, didacticism and theme of theodicy. You need to remember this. Okay, and if you like the video, please don't forget to subscribe. And thank you.